We are here to learn money. What is money? When we go to market, we have to buy things, and for that we have to give money to the shopkeeper. So today we are going to learn money. What are money and what are its types? The Indian currency. In Indian currency, there are some coins and rupees. Coins are of 10 paise, 25 paise, 50 paise, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, and 10 rupee. Here are some coins in Indian currencies: 10 paise, 25 paise, 50 paise, 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee, and 10 rupee. These are the coins. And there are some notes also. There are some notes. These are coins and now notes. Currency note. It is 1 rupee note, 5 rupee note, 10 rupee note, 20 rupee note, 50 rupees note, 100 rupee note, 200 rupee note, 500 rupee note, and 2000 rupee note. These are the notes. These are the notes: 1 rupee note, 5 rupee note, 10 rupee note, 20 rupee, 50, 100, 200, 500, and 2000. Now, how does we represent rupee and money? How does we represent rupees and money? Here are some qualities. Here it is. We represent rupees. In Indian currency is rupees this. And for paise, we use P. Okay. Now for example, I am writing here 25 rupees 60 paisa. So how can I write in numbers? It is rupees 25.60. We represent paisas by putting a point. So it is 25 rupees 60 paise. Okay. Now we will learn how to convert rupees into paisa and paisa into rupees. Firstly, 1 rupee is equal to 100 पैसे. हमेशा ये याद रखना बेटा कि 1 रुपया जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है. 1 rupee is equal to 100 पैसा and 1 पैसा is equal to 1/100 rupees. ठीक है. तो 1 rupees is equal to 100 पैसा and 1 पैसा is equal to 1/100 rupees. समझ में आ गया? Now we will convert rupees into paisa and paisa into rupees. First we will convert rupees into paisa. For example, I am having 7 rupees. Rupees 7 is equal to how much paisa? तो सबसे पहले क्या हमने पढ़ा कि rupees 1 is equal to 100 paisa. So 7 rupees is equal to 7 into 100 is equal to 700. बहुत ही सिंपल है बेटा कि जब भी आपको रुपीस दिए गए आपने पैसे में कन्वर्ट करना, यू हैव टू मल्टीप्लाई द अमाउंट गिवन इन रुपीस बाय 100. ठीक है. तो यहाँ पर ये तो सिंपल था, 7 है. बाय चांस आपको ऐसे दिया 7 रुपीस 25 पैसा कन्वर्ट इनटू पैसा, तो क्या करोगे? Then also rupees 1 is equal to 100 paisa. 7.25 rupees is equal to 7.25 multiplied by 100 is equal to, आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना,
अदरवाइज यहाँ पर 2 जीरो है तो पॉइंट जो है वो यहाँ जंप हो जाएगा, तो इट विल बी 725। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जब भी रुपीस दिया है उसको पैसे में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करके आप उसको आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो अगर इससे थोड़ी बड़ी अमाउंट दी गई है पैसे में, इतनी भी अमाउंट दी गई हो आपको, आपने सिंपली करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय, देखो दिस इज योर 24 रुपीज 35 पैसे इज इक्वल टू हाउ मच पैसे, again rupees 1 is equal to 100 paisa, so 24.35 is equal to 24.35 multiplied by 100 is equal to 2435 paisa. Is it simple? बहुत ही आसान है। जब भी आपको रुपीस दिया है पैसे में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू multiply by 100 and write the answer. ठीक, now we are going to convert paisa into rupees. If paisa is given, here it is 4359 paisa is equal to how much rupees. कितने आपको पैसे दिए हुए हैं, बता पूछा गया कि कितने रुपीस में चेंज करोगे, हाउ कैन यू डू इट? बहुत सिंपल, यू हैव टू डू इट इज 1 पैसा is equal to 1/100 रुपीज। ये बात याद रखनी है, और जब आपको ये याद रहेगी दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड दिस अमाउंट बाय 100, तो आपको इसको 100 से डिवाइड कर लेना है। तो 4359 पैसा इज इक्वल टू 4359 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, जब जीरोस होता है और 1 होता है नीचे, 100, 10,000, 10,000 लाख, इस तरह के अमाउंट से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। ओनली सी कितने जीरोस है, 2, कितने जीरोस है, 2, तो आपने क्या करना है, पीछे से अमाउंट लेनी है 1, 2 और पॉइंट लगा देना बस, तो इट विल बी 4359, तो कितनी जीरोस है, 2 जीरोस, तो यहाँ से 1, 2 पॉइंट, एज इट इज सिंपल है। एक और सम देख लेते हैं इसी का हम। इट इज 2569 पैसा इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज, अगेन 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज, तो 2569 पैसा इज इक्वल टू 2569/100 is equal to 2569। नाउ कितने पॉइंट जीरो है बेटा, 2, तो 2 जीरो को क्या करेंगे, 1, 2 और यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे, एंड दिस इज 25 रुपीज एंड 69 पैसा। ठीक है, समझ आ गया बेटा आपको? तो दिस इज, नाउ वी आर गोइंग टू डू एडिशन ऑफ मनी, हाउ वी कैन add it. It is here rupees and here it is paisa. It is 1435.75 plus 6309.25 plus 3801.25. Here it is a amount. You have to just add it. 5, 5, 5, 15, 5, 1 carry, 7 plus 1, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 1 carry, 9, 10, plus 5, 15 plus 1, 16, 6, 1 carry, 3 plus 1, 4, 4 plus 3, 7, 7 plus 8, 15, very good, 5, 1 carry, 1, 2, 2 plus 6, 8, 8 plus 3, 8, 9, 10, 11. So this is your answer. Rupees and paisa. You can do the addition like this. ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एक और सम इसी तरह का। It is 3000. Again here rupees, here paisa, 40, 2471.30
तो हम इसको ऐड करेंगे 0 4 + 3 7 पॉइंट 0 + 1 1 0 + 7 7 4 + 0 4 3 + 2 5 तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, सपोज आपको अमाउंट ऐसे नहीं दी हुई है, आपको अमाउंट दी है फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ। अब सम ऑफ का मतलब क्या होता है? प्लस करना। जब भी फाइंड द सम ऑफ दिया गया दैट मीन्स यू हैव टू ऐड। ठीक है, तो आपको अमाउंट दी गई है ₹47.25 एंड ₹125.65, ये अमाउंट है आपकी। तो आपने इसको भी वैसे ही करना है, यहाँ पर आप रुपीज लिख लोगे, यहाँ पर ऐसा, यहाँ 47.25 एंड 65.125। अब फाइंड द सम ऑफ, सम ऑफ क्या होता है बेटा? प्लस, तो हम यहाँ इसको प्लस कर देंगे। 5 + 5 10 0 1 कैरी 6 + 2 8 + 1 9 0.7 + 5 12 2 1 carry 4 + 1 5 6 7 and 1 and this is your answer। ठीक है बेटा, एडिशन दिया तो एडिशन करना ही करना, पर फाइंड द सम ऑफ दिया, सम ऑफ का मतलब होता है प्लस करना, तो यू हैव टू प्लस इट। ठीक है, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। व्हाट डू मीन बाय सब्ट्रैक्शन? यस, सब्ट्रैक्शन मींस माइनस करना। Subtract means you have to minus। ठीक है, तो यहाँ पर रुपीज ऐसा 4372.65 minus 1241.35। इट इज सिंपली माइनस करना है, माइनस करना यानी कम कर देना उसको। जैसे यहाँ 5 है, 5 में से 5 गया 1 2 3 4 5 ऑल गॉन, क्या बचा? 0। इसी तरह 6 में से 3 गया, 6 - 3 इज 3, 2 - 1 1, 7 - 4 3, 3 - 2 1, 4 - 1 yes 3, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ गया? ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एक कैरी वाली मल्टीप्लिकेशन माइनस भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर रुपीस पैसा 2465.35 minus 1695.25। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5 गया 0। अब 6 में से 9 नहीं जाएगा। अगर आपके पास 6 टॉफीज है और मुझे 9 चाहिए, आप दे पाओगे? नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, वी कैन बोरो फ्रॉम हियर, तो इट कैन बिकम 16। तो 16 में से 9 गया, अगर तो सिंपली कर सकते हो यू कैन, नहीं अदरवाइज ड्रॉ द लाइंस। 16 में से 9 गया 7, अब यहाँ 3 है, 3 में से 4 फिर नहीं जाएगा, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे। 13 में से 6 गया 7, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ₹770 and 10 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइंड द डिफरेंस ऑफ। अब सब्ट्रैक्ट को एक और बोलते, जैसे एडिशन में कहा था फाइंड द सम ऑफ, सब्ट्रैक्शन में बोलते हैं फाइंड्स डिफरेंस बिटवीन, फाइंड डिफरेंस बिटवीन। अब डिफरेंस बिटवीन का मतलब है दो अमाउंट में माइनस करना। डिफरेंस बिटवीन का मतलब क्या है? माइनस करना। तो यहाँ पर आपको अमाउंट दी है ₹235.40 फ्रॉम 549.20। तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 235.40 फ्रॉम 549.20। तो आपको ये अमाउंट में से ये अमाउंट, जब माइनस फ्रॉम कहा गया यानी इस अमाउंट में से इस अमाउंट को आप माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा
रुपीज़ लिखोगे, यहाँ पैसा लिखोगे 549.20 माइनस 235.40। जीरो में से जीरो जीरो, अब 2 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम, कैरी लेंगे यहाँ से, यहाँ रह जाएगा, बोरो कर लिया हमने। तो 12 में से 4 गया 8 में से 5 गया 8 माइनस 5 इज यस 3, 4 माइनस 3 1, 5 minus 2 3. So this is your answer. Okay students, all done for today. Meet you another day. Thanks.